सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए। सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए। सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता जम का डर किहा। सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दिहा। सतगुर होए दयाल ता जम का डर किहा। सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दिहा। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता नवनिध पाइए। सतगुर होए दयाल ता सच समाइए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। अकाल पुरख वाहिगुरु दे घर किसी चीज दा घाटा नहीं है भाई। जो कोई निरंकार दे चरना विच जुड़ के अरदास करे, साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरना विच अरदास करे ते ओ केड़ा सुख है जो गुरु नहीं बख्शदा। बाबा जी बचन करया करदे सन, तेरे झोली अड्डण विच देरी हो सकदी है। तेरे अरदास करन विच देरी हो सकती है भाई, पर गुरु नानक नू दाता वंडन लगिया, तेरी झोली भरन लगिया कदी देरी नहीं लगेगी। वो आप सबना जियां दी प्रतिपालना कर रहा है। कई वेरा मनुख सोच लैंदा है भाई
ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਖ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭੋ ਕਰਿਆ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾਮਦੇਵੀ ਹਾਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰੀ ਜਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਭਾਈ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਉਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਤਨੀ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਕਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ? ਆਖਿਆ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਬਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੱਜਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਜਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਜਾ ਸੱਜਾ ਆਖਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਜਾ ਆਖ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ 6 ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਭਾਂਗਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੱਜਿਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਪੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ
मैं क्या ना मैं तो 6 घड़ियां नहीं इत्थे रुक सकदा इत्थे बड़ा लंबा समा हो जाना है मैनू खिमा बख्शो आज्ञा देनी है ते दियो ते नहीं मैं ते चलिया फिर कोई बजूरी लभनी है मैं ते जाके ते हुण साहब जी आख्या सिख साडा सदवाउंदा है ते बचन मनदा कोई नहीं उच्चारण करो श्री वाहिगुरू सिख गुरु नानक दा अखबार है हुक्म मनदा कोई नहीं गुरु दा आख्या कोई गल नहीं फिर जुगती दे नाल ले भाई सजिया एक निक्का जा काम कर साडा एक चिट्ठी तेनू लिख के देने आ ते जांदिया होया साडा एक सेवक रहिंदा पीर बुद्धू शाह चंगी तरह जानदा तू ओनू ये साडी चिट्ठी उस पीर बुद्धू शाह नू पकड़ा जी जांदा होया ते फिर जा फिर कर दिहाड़ियां अपनियां जाके कहन लगा ठीक है महाराज ये बचन तुहाडा मान लेने आ लिखो साहब जी ने लिखिया चिट्ठी पकड़ाई भाई सजे नू ले भाई सजिया ले जा सजा आया पीर बुद्धू शाह जी दे पास पीर बुद्धू शाह ने जदों सुनिया भाई सज्जा आया है आनंदपुर साहब तो और गुरु दा हुक्म लेके आया है ते पीर जी नूं ते चाह चढ़ गया खुशियां चढ़ गईयां गुरु दा हुक्म आया भाई सज्जे दे चरनी डिगण कितना प्यार दिता भाई सज्जे नूं सजिया तू गुरु दे दर्शन करके आया है ते असी तेरे दर्शन करके निहाल हो गए भाई तू बो मैं तेरी लंगर प्रसादे दी सेवा करा कोई तेरे चरना दी धूड़ में मस्तक ते ला सका ते भाई सज्जा कहन लगा पीर जी इतना क्षमा नहीं है मेरे कोले छेती करो मैं जाना चाहना मैनू आज्ञा दियो ते पीर जी कहन लगे भाई सजिया जो चिट्ठी तू लेके आया शाह गुरु कलगीधर पातशाह जी दी भला इनू पढ़ते लईए की हुक्मनामा लिखे महाराज जी ने आख्या पढ़ो छेती पढ़ो महाराज पीर बुद्धू शाह जी ने वो चिट्ठी खोली ते विच लिखिया सी पीर जी जिस सिख दे हाथ असी ये पत्रिका भेज रहे हैं ना इस सिख नू घटो घट 6 महीने अपने पास रखना है जे प्यार नाल रह जाए ते ठीक है ते नहीं फिर दूजी तरह भी रखना है ये साडा हुक्म है उच्चारण करो श्री वाहिगुरू ते पीर बुद्धू शाह जी कहन लगे ले भाई सजिया हुक्म साडे लिए भी आया ते हुक्म तेरे लिए भी आ गया तो 6 महीने साडे पास रहना है प्यार नाल रह जाओ चंगो रहेगा ते नहीं फिर असी दूजी तरह भी रखना जानते हैं क्योंकि गुरु दा हुक्म है भाई और गुरु दा हुक्म ही साडी जिंद है साडी जिंदगानी है गुरु दा हुक्म भाई सज्जा बड़ा रोला पावे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे गरीबां दा कौन होंदा है किने संभाल करनी है गरीबां पीर जी कहन लगे सजिया तू बिल्कुल चिंता ना कर परिवार दी बच्चियां दी चिंता ना कर जिस गुरु ने तेनू 6 महीने इत्थे रहन दा हुक्म कीता ना ओ गुरु आप तेरे बच्चियां दी प्रतिपालना करेगा भाई नाले लंगर प्रसादे दी चिंता ना कर रज के खवावांगे तेनू हर सुख तेनू देवांगे इत्थे बस ए हुक्म है गुरु दा तू 6 महीने इत्थे रहना भाई सज्जा रह पिया इधर जिथे भाई सजे दा परिवार रहंदा सी ना ते इंदे नाल ही एक शेठ दा घर सी साहब जी ने अमृत वेले उस शेठ नू दर्शन दिते ते नाले आख्या भाई शेठ जी ये जो नाल भाई सजे दा परिवार रहंदा ना ये मेरे ही बच्चियां मेरा ही परिवार है ते आज तो फिर इन्हां दी देखभाल करनी ये तुहाडी ड्यूटी है इन्हां नू वेले सिर प्रसादा मिलना चाहिए वेले सिर सोने वस्त्र दियो पैरन लई गुरु नानक तुहाडे खजाने भरपूर करेगा बख्शिशां करेगा तुहाडे सेठ ने धन भाग समझी सेवा मिली है गुरु दे दर तो हुण वेले सिर इन्हां नू प्रसादा मिलन लगा सोना खांदियां वेले सिर वस्त्र मिलन लगे सोना पैरदियां हर सुख मान रहे हैं बरसातां दा मौसम आ गया इन्हां दी छत चोण लगी सजे दी घर वाली बार मिट्टी पुट्टण गई ते इनू खुरजी
मोहरां दी भरी हुई मिल पई। इन्हें सेठ अगे लिया रखी। सेठ कहन लगा बई ये सब कुछ तुहानू गुरु कलगीधर पातशाह जी ने बख्शिश कीता है ते मैं तुहाडा मकान भी सोहना बना देना। ते शुकराना करो अपने गुरु दा जिन्हें एडियां वड्डियां बख्शिशां कीतियां तुहाडे ते। सोहने मकान बन गए, सोहने महल तैयार हो गए। सारा परिवार अपने मालिक दा शुकराना करदा है, गुरु दे गुण गा रहे भाई। इधर 6 महीने पूरे हुए ते पीर जी ने आवाज दिती, भाई सजिया आजा, 6 महीने पूरे हो गए। सजिया आया, जान लगा ते पीर जी कहन लगे, भाई सजिया हुण घर जाना है। हाँ महाराज घर ही तो जाना है हुण। कहन लगे भाई सजिया जे घर जाना ही ना तो पहला आनंदपुर शाह विखी साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को आज्ञा लेके ते फिर घर जा, सोना बनेगा कम तेरा। ते भाई सज्जा कहन लगा महाराज इतना कमला ते मैं भी कोई नहीं हाँ। पहला गुरु दा हुक्म ले आया ते 6 महीने तैं कैद कर ले है। हुण तेरी चिट्ठी ले जावा गुरु कोले ते गुरु पता नहीं कितना समा कैद कर लेवेगा। हुण मैं नहीं जाना गुरु कोले, चलिया मैं तो अपने घर। उतो फिर ज्यों दौड़िया भाई सजिया, भजिया भजिया आवे। दूरों ही वेखिया गरीबां दी झोंपड़ी, कित्थे गई ओ झोंपड़ी भाई। इतने सुंदर महल उसरे होए हन, सोहणे मकान बने पे हन। गरीबां दा कौन हुंदा है? मेरे बच्चे रुल गए होने हन, पता नहीं कित्थे चले गए होने हन। ये अपने मन विच गिनतियां गिन रहा सी ते अंदरों इंदी घरवाली निकल आई। स्वामी तुसी आ गए हो, तुसी जिथों आए हो उथे वापस चले जाओ। सजा हैरान, चंगी घर वाली है, 6 महीने पिछों घर आया ते आंदे कहंदी वापस चले जाओ। क्यों भाई? इंदी घर वाली कह लगी स्वामी सच पुछदे हो ते जदों दे तुसी इथों गए हो ना, साड़ छत्ती अपने नाल ही ले गए हो। भुख नंग गरीबी ये सब कुछ अपने नाल ले गए हो तुसी। असी चंगा खांदे हां, चंगा हंडांदे हां, अपने प्रभु दे गुण भी गाउंदे हां भाई। ते फिर ज्यों सारी बीती हुई वार्ता सुनाई ना भाई सजे नूं ते एदे नैन कटोरे भर आए। हुण नैना विच जल रुक नहीं रहा। आख्या बच्चे कित्थे ही? वो तो भाई अंदर अन खेड रहे हन। आख्या बुला उन्हां नूं, खुणे जाने श्री आनंदपुर शाह विखे। सारे परिवार नूं लैके साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी दे दरबार विच पहुंचिया। मत्था टेक के संगतां विच बैठन लगा ते साहब जी ने आवाज दे दिती, भाई सजिया संगतां विच बैठन लगाई। जा भाई छेती जा, कोई मजूरी लब, कोई 4 पैसे मिलणगे ते तेरा परिवार पलेगा। ते भाई सज्जा चरना ते डिग पिया, नैना दे जल नाल हजूर दे चरण धो दिते। हे गुरु कलगीधर पातशाह तुसी आप ते शबना दी प्रतिपालना कर रहे हो, आप साडे परिवार दी देखभाल कर रहे हो ते असी कौन हां अपने बच्चों नूं पालण वाले। साडियां भुल्लां माफ करो, साडे अवगुण खिमा करो। असी अपने गुनाह बख्शाउण लई तेरे चरनां विच आए हां। जे साडे अवगुण चितारोगे ना असी कदी भी बख्शे नहीं जा सकांगे भाई। तुसी किरपा करो साडे अवगुण ना चितारो, बस अपने चरनां नाल जोड़ लो। साडा ए लोक भी जिवें तुसां सुखी कीता ना, साडा परलोक भी सुहेला कर दियो। ते साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपना मीरा भरिया हाथ भाई सजे दे सिर ते रखिया। भाई सजिया ओ गुरु नानक साहब सारे जगत दी प्रतिपालना कर रहे हैं। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। इसलिए भाई जो कोई निरंकार दे दरबार विच आ जाए, एक मन एक चित हो के अरदास करे निरंकार दे चरना विच, बिरथी कदे न होवी जन की अरदास। ते बाबा जी फिर क्या कर दे सन, फिर जो दाता प्राप्त हो जान ना,
फिर गुरु दा शुकराना करना कदी ना भूलना। शुकराना करो निरंकार दा जिसने इतने सुख तेनू बख्शिश कीती हन भाई। ये शुकराना किवें करना है उस गुरु दा? आख्या ओदा नाम जप के शुकराना करो। अमृत वेले उठो, इशनान करके श्री जपजी साहब जी दा पाठ करो। साहिब गुरु नानक साहब जी कहंदे न, जो सिख अमृत वेले उठ के जपजी साहब जी दा पाठ नहीं कर रहा ना ते ओ मेरा कुछ लगदा है ते ना मैं ओदा कुछ लगदा भाई। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है, जप बिना जेहवे प्रसाद ओ सिख नहीं मेरा आद जुगाद। तो इसलिए भाई गुरु नानक दा सिख होवे ते अमृत वेला सौ के बिता देवी, फिर किवें बख्शिशां प्राप्त करेगा भाई। तू भी अमृत वेले उठ के जपया कर सतनाम श्री वाहिगुरू। सो आओ जो हजूर सुंदर उपदेश कर रहे हन। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरीए, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए। सतगुर होए दयाल तो शरधा पूरीए। सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए।